मैम पीछे Welcome, sir. Hi, Sangeeta. Sanjeev sir, just push in the background. Sanjeev sir here. Sir here. Sanjeev ji. Sanjeev ji here, here. Sir on your right, sir. Sir on your left. Sir here center. So ma'am in this camera. Sir. Sir on your left, sir. Sir. Okay. Bye. अरे दादा पीछे लो कैमरा. अरे कैमरा बीच में आ रहा है ना. हाँ. थैंक यू. मैम here. सर सर यहाँ पे. सर यहाँ लेफ्ट. सर यहाँ पे लेफ्ट. Is not here. So can you just come up and they would like to honor Sanjeev as well, and if you can have a word about what you would like to tell us about this different restaurant that's going to happen in Dadar. I mean, yellow chili in Dadar, I wouldn't have thought of it 5 years back, like Sanjeev. Good evening and welcome to the grand launch of the Yellow Chili Dadar. First and foremost, let's congratulate Chef Sanjeev Kapoor, who has been awarded Padma Shri. But you will do it in your own way. To give the shawl and the paper. So we will do that. I just want to have a few words basically. The idea of yellow chili which came to our mind, we were sourcing out the place, and when we came across the place at Dadar in this hall, we never thought anybody else but the yellow chili. I am based in Dubai. I have been to all yellow chilies in Dubai, and that idea was going on to my mind that one day I will open the yellow chili in Dubai. And the opportunity came because of my friend Nitin, my friend Milind. We two got together. We are from different background. I am from hospitality background for last 30 years. Takes Oberoi, takes Nina. Nitin has got his own tax consultancy. Milind is an architecture firm. But we came together and we decided to have this, and here we are. And we are really proud to be associated with Chef Sanjeev. I would also like to thank one person who has made it possible, and that is Rajiv Mata. Thank you so much, Rajiv, for being with us. And I'm really looking forward to a very, very long relationship with you guys. Thank you so much. Now, amongst the press,
anybody who has something special to ask him, whatever you want. Should we declare the floor open? And knowing Sanjeev, you can, right from singing for you, a lot is planned today. So have a ball, have fun, and look at it as not one of those typical press evenings that we have. Couple of cocktails and then we go home, not that. Right? इसको कहते हैं pressure. But thank you very much, Ravi. Thank you for all the kind words. And I don't know how we do this. ये कमाल है हमारा. इतने सालों में हम कोई ना कोई अपने ऐसे दोस्त ढूंढ लेते हैं जो हमारे बारे में अच्छा बोलेगा और चार्ज भी नहीं करेगा. ये हमारी खासियत है. मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे और कुछ नहीं है. मतलब पैसे नहीं दोगे तो फिर तो मतलब बहुत मेहनत लगेगी ना. कुछ करना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है. खाना मिलता है ना. खाना मिलता है. Yeah, so that's one good thing कि मतलब खाना बड़े कमाल की चीज़ है. मैं कहता हूँ कि कोई काम करवाना हो, क्या काम है? बहुत आसानी से हो जाएगा. कभी पैसे नहीं देने पड़ते, कोई ब्राइब नहीं करना पड़ता. बस एक मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सा कुछ खिला दो तो एक तो मतलब नमक की ताकत बड़ी ज़बरदस्त होती है, राइट? तो मतलब हमें शोले भी पता चल गया था कितनी ताकतवर चीज़ होती है नमक. तो सरदार होने की ज़रूरत नहीं, वैसे हमें पता है. So, नमक जो है अब इतने कमाल की चीज़, तो इससे जब टीवी शो भी किया तो उसमें भी एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि टीवी शो इतना हिट हो जाएगा. तो खाना बनाते थे चुपचाप. किसी ने बोला कि नया चैनल आने का ना, CTV कुछ ऐसे है, तो उसमें कोई शो करना है. दिखते करते एक एपिसोड करना था. तो एक एपिसोड करते करते 19 साल हो गए, पता है नहीं चला. एक ही शो 19 साल करते रहे. और उसके अंदर भी मैं नमक डाल रहे तो मैं बोलता नमक स्वाद अनुसार. कई लोग हैं जिनको नमक स्वाद अनुसार जो है अभी पिछले महीने ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था. हमने जरा सा किया तो ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू कर दिया नमक स्वाद अनुसार. में क्या बात है, ये पावर ऑफ. मतलब देखिए ये ऐसा नहीं, नमक की पावर ही ऐसे. गांधी जी ने भी इतना बड़ा मतलब नमक का जो है हमारी हिस्ट्री से लेके आज तक रोज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम रोल है. और कहीं ना कहीं नमक बड़ा सीक्रेट भी है, बहुत रेफरेंस भी है. तो जब हम अपने रेस्टोरेंट की बात, हमने पहला रेस्टोरेंट जब करना था इंडिया में, तब ये बात है कि नाम क्या होना चाहिए. मैंने कहा नहीं, सॉल्ट, नमक, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर नमक हो. तो एक नाम मुझे बड़ा पसंद था, वो था ग्रेन ऑफ सॉल्ट. तो ये नाम बड़ा अच्छा था. मैंने कहा नहीं, एक्चुअली रेस्टोरेंट का नाम थोड़ी सी उसमें मस्ती चाहिए. तो मेरे लिए नमक जो है बहुत ज़्यादा इज्जत है, रेफरेंस है. मैंने कहा नमक के साथ ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए. तो नाम में हुआ. तो मैंने कहा अच्छा और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंडियन लोगों को और खाने में मज़ा आता है जिस चीज़ से, तो वो थी चिली. चिली, लेट्स प्ले अराउंड विद चिली. तो सबने कहा कि अच्छा जी रेड चिली, ग्रीन चिली. नहीं, मज़ा नहीं, मस्ती नहीं. तो हमने क्या किया, येलो चिली किया. क्यों? कुछ अलग होना चाहिए. फिल्में लोग बनाते हैं कुछ अलग, कुछ हटके, तो बनाते सेम, राइट? हिम्मत नहीं. लेकिन हमने कहा हम करेंगे कुछ अलग, करेंगे कुछ हटके करेंगे. तो हमने नाम किया येलो चिली. और लुधियाना में पहला हमने रेस्टोरेंट खोला. बहुत साल हो गए उस बात को, 18-19 साल, 18 साल के करीब हो गए. और वो रेस्टोरेंट आज भी लुधियाना में नंबर 1 बिजनेस करता है 1 साल बाद. और काफ़ी लोगों ने तब मुझसे पूछा कि ये येलो चिली जो आप कर रहे हैं, आप इसको एकदम हाई एंड नहीं कर रहे हैं, बड़ा रिस्की है. क्योंकि मेरा बैकग्राउंड 5 स्टार का, 5 स्टार में तो आने से मतलब ऐसे ही डर लगता है. दरवाज़ा खोलने के लिए भी 2 लंबे चौड़े लोग खड़े हुए होते हैं. सो इट्स इंटिमिडेटिंग, राइट? बट बाय दैट टाइम आई स्टार्ट टू डू टीवी शो. मेरा ये विचार था कि मैं जब टीवी में खाना बताता तो कहते आपका खाना मिलेगा. सो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट खाना बढ़िया हो, खाना 5 स्टार जैसा हो, लेकिन पैसे वैसे नहीं. So I had to come up with a formula where you get good quality food
but the price should be reasonable for that food. So that's where we created the philosophy of Yellow Chili, which is great quality food, but price which will be less than, मतलब आज की रेट में तो actually 1/3, 1/4 of 5-star होगी. मतलब while we say it is not that expensive, लेकिन बहुत लोगों के फिर भी out of reach. हमें मुझे अभी भी याद है, मैं मुझे हमारे बबली साहब अच्छा भट्टा दिख नहीं रहे हैं और हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर विनायक जी तो दिख रहे हैं, हर्षा भट्टन दिखने शुरू हो गए, मैं मिस नहीं कर सकता हूँ इनको, आएंगे तो हर्षा जी और हम प्रेसिडेंट हाउस गए और हम अपने बुक्स लेके डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे, हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने बुक का सेट उनको प्रेजेंट किया और उस समय हमने छोटा एक बुक ली थी जो बहुत सस्ती हमने देखी, 50 रुपए की, एंड वी वर वेरी प्राउड कि हमने इतनी सस्ती बुक निकाली है 50 रुपए की बुक से. So हमने बताया, हमने प्रेसिडेंट को बताया कि ये देखिए जो सर ऐसे ऐसे हैं बुक्स हैं, वी हैव केप्ट इट वेरी रीजनेबल एंड दिस इज वेरी चीप, दिस उन्होंने देखी बुक, दिस इज हाउ मच इज दिस, दिस इज 50 rupees. My son, you call this cheap? This is very expensive. Do you know for 50 rupees how many meals can be fed to hungry people? You think it's cheap, it is wrong. So that's when you realize कि अच्छा, मतलब आप जो सोचते हैं, so while we say that in our this thing that it's reasonably priced for what we offer, for the kind of food and all these service we offer, it's very reasonably priced, but it's a perspective, हर चीज़ का perspective होता है. So हमने धीरे धीरे खोलने शुरू किए रेस्टोरेंट. मेरा मानना ये था कि हम जो येलो चिली है उसको जगह जगह खोलें, मतलब छोटी छोटी जगह ज़्यादा खोलें जहाँ पर मतलब जो अच्छा खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता. सो दैट हैज़ बीन आवर फोकस ओवर द ईयर्स. और हम लोग बड़ी जगहों पे इतनी जल्दी नहीं करते. दिस इज एन एक्सेप्शन, आई मस्ट टेल यू. सो दादर, सेंटर, मुंबई, इट्स एन एक्सेप्शन. इट डज नॉट कम इन आवर थिंक कि हम जो येलो चिली है उसको एकदम, ये पिछले करीब 1 साल से थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू हुआ हमारी थिंकिंग में कि हम एक बड़े शहर के सेंटर में we would have it in places where it's because I believe that that's what I want to do, that's what I want to achieve. कि कोल्हापुर में होना चाहिए, सतना में होना चाहिए, काफ़ी जगहों पे. Anyway, so I'm very happy that now एक रेस्टोरेंट हमारा मुंबई के बीचों बीच है. एक पवई में है, एक थाने में भी है मुंबई. उसके अलावा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, करीब 70 के करीब हमारे रेस्टोरेंट्स भी चल रहे हैं दुनिया भर, करीब 40 सिटीज़ के अंदर. एंड लास्ट couple of years, last 2-3 years, हमें लगा कि अब जो खाना है हमारा हिंदुस्तान का खाना पूरी दुनिया में बढ़ना चाहिए. So we have taken a very aggressive stand on this to reach our Indian food to the world in a very aggressive way. So इस समय हमारे करीब 135 रेस्टोरेंट्स का आज की डेट में we have total open and signed restaurants. So they are in different stages. कुछ पे काम चल रहा है, कुछ इस महीने खुल जाएंगे, कुछ अगले महीने खुलेंगे, कुछ 6 महीने बाद खुलेंगे. So that's our speed at which we are going, and we believe that ये जो high speed है उसका reason ही है कि because the popularity of Indian food is growing, and we want to make sure that we become the torchbearer for growth of Indian food, which we do through many different ways, but now through restaurants also. And in all of this, मैंने एक हर्षा भट्टकर हमारे पार्टनर की बात कर दी, एक दूसरे हमारे विनायक गवंडे यहाँ पे बैठे हैं, एक तीसरे हमारे अनंता जी भी आ गए हैं. Mankekar sir, good evening, good to see you too. So हमारे all stakeholders who collectively believe that we have to have this aggressive
growth. So that's what we are doing. But हम तो सिर्फ प्लान कर सकते हैं. तो आपने देखा कि जब बात की जा रही थी, प्रदीप जी ने जब एक नाम लिया, जब उस समय सबसे ज्यादा शोर मचा था, वो था राजीव माल्टा जी का. हम तो बोलने वाले, करने वाला भी तो कोई है. तो राजीव माल्टा जी सर, राजीव सर, ये है हमारे राजीव सर. और राजीव सर का परिचय दे देता हूँ कि हम लोग कितने साल से, 36 साल से हम लोग जानते हैं. तो मतलब इनके साथ मतलब मेरी कोई दाल नहीं गलती है इसके नाम. एक तो घर में नहीं होती, जब आपकी शादी हो जाती है तो कोई दाल आपकी नहीं कर सकती है. दूसरे मतलब जिसके साथ में आप 36 साल से हो तो वो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता. तो सो आई वुड से दैट Rajiv and his full SKRPL team has made this possible. और ये लोकेशन आपने काम कितनी देर में कर किया? 53 दिन में रेस्टोरेंट. इंडिया के बाहर पॉसिबल हुआ करती थी, but now to get that done here it needs a lot of work, lot of planning, and of course not without the owner's will to do it. उसके बिना कभी नहीं होता. So thank you Nathan, thank you Pradeep, thank you for this, and Milind Aryan. Okay. So at Yellow Chili हमारा मानना ये है कि हम जो खाना देंगे ना वो टेस्टी तो होगा ही, उसके साथ थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट, जिसको फेमिलियर चीजें खानी है तो उसको लगना चाहिए कि ये फेमिलियर बिल्कुल. सो आई गिव यू वन और टू एग्जांपल. जैसे हमारा अगर चिकन टिक्का है तो चिकन टिक्का नॉर्मल चिकन टिक्का सब जगह मिलता है, लेकिन उसके मैरिनेट में हम लेमन ग्रास राइट. नाउ जिसको लेमन ग्रास पता है तो वो ढूंढ भी लेगा, उसको पता भी चलेगा कुछ तो अलग है. जिसको वो लेवल स्क्रैच नहीं करना, उसके लिए चिकन टिक्का बड़ी अच्छी बोले ना. बिकॉज फूड में फेमिलियरिटी बहुत चीजों में, म्यूजिक में, फूड में बहुत चीजों, फेमिलियरिटी इज इम्पोर्टेंट. आप बहुत सारी चीजें नहीं चल रहे हो तो पहले रेजिस्टेंस आ जाए, वो डोर ही नहीं खुलता है, पता ही नहीं चलता है क्या है. पहले तो पराठा खिलाना सिखाओगे, फिर सोचोगे कि किस चीज का पराठा है, फिर आप कहोगे अच्छा ये इसके है. तो अभी आप बटाटा वड़ा सर्व कर रहे हैं राइट. बटाटा वड़ा जिसमें सर्व कर रहे हैं वो एक्चुअली पाव जो है बड़ा सफेद सा ऐसा लगता है कि पूरा पका नहीं होता है, एक्चुअली पूरा पका हुआ है, स्टीम्ड है. नॉर्मली जो बनता है यहाँ पे जो दे रहे हैं अभी स्नैक्स में आप देखें वाइट कलर है. दैट इज प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ सम अदर cuisine. बट एक कुछ फ्राइड है उसके साथ में स्टीम वाला कंबाइन करो, थोड़ा सा तो कुछ तो शर्म करो. मतलब क्योंकि ये बोलेंगे हम ये खाएंगे नहीं खाएंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे तो कल तो आता नहीं राइट. सो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वी ट्राई टू, तो धीरे धीरे हम खाने को और लाइट बनाने की कोशिश करते हैं. बिकता फिर भी कम है लाइट वाला. हम काली दाल भी बेचते हैं, पीली दाल भी बेचते हैं. जितनी काली बिकती है उसकी 10% भी पीली नहीं बिकती. काली वाली में भर के मक्खन क्रीम सब कुछ होता है, पर हम अपनी कोशिश जारी करते हैं. हम दाल अगली वाली भी पीली लॉन्च करेंगे, शायद काली नहीं करेंगे. बट सो आवर इंटेंट इज टू मेक श्योर दैट वी डू वी डिलीवर फूड इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वे. शुरू से, आज से नहीं, जब से हमने अपने रेस्टोरेंट्स खोले हम लोग आर्टिफिशियल कलर्स खाने में, अब तो खैर ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब चिकन के ऊपर रंग लगाया करते थे. अभी भी छोटी जगहों में अभी भी होता है, यहाँ मुंबई दिल्ली वगैरह में नहीं होता, और छोटी जगहों में भी होता है. तो 20 साल पहले सोचे कि याद होगा जब हमने ये करना शुरू किया तो कहते ये तो दिखता नहीं है, टमाटर का सूप तो लाल होता है. सो
we've always believed that we will work with fresh seasonal ingredients. We will work with highest ethics and also वो जैसे रवि ने एक चीज़ कही कि हमारे जब ऑफिस में आते हैं लोग तो वो सब हंसते मुस्कुराते रहते हैं और इसका कारण ये है कि हमारा बिलीफ है कि काम अच्छा करना है तो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी इज इम्पोर्टेंट सो और खाने बहुत ज़्यादा वी नीड दैट अ लॉट बहुत ज़्यादा आना चाहिए होता है मैं किचन में जब भी जाता हूँ कहीं ऐसे रेस्टोरेंट या मैं एक ही चीज़ कहता हूँ मैं कि खाना वाना तो वाकई अच्छा हम ट्रेन करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन मुस्कुरा के खाना सर्व करना मुस्कुरा के तो ठीक है लेकिन मुस्कुरा के खाना बिकॉज वंस यू डू दैट ये घर में भी ट्राई कर सकते एंड इट वर्क्स आई बीन डूइंग इट फॉर इयर्स एंड आई हैव बीन सेइंग दिस एंड इट वर्क्स इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ कहने वाली बात नहीं है ना आप प्रैक्टिस करके देखिए इट हैज पॉजिटिव एनर्जी इज नॉट जस्ट वर्ड इट्स समथिंग दैट I practice and it works. So I would encourage people who are cooking they should definitely add that mystery ingredient. I should say. Anyway, रवि ने बोला कि मैं जो चीज़ करता हूँ पैशन के साथ रखता हूँ बहुत वो है तो इसलिए अगर मेरे हाथ में माइक दे दो तो वो भी मैं पैशन के साथ मुझे करता हूँ मुझे इलेक्शन में खड़ा कर दो तो मैं हारूंगा नहीं क्योंकि कोई मुझे कहता है कि कैसे नहीं तो चांस ही कि विश्वास कहते कि क्या आप ऐसे कैसे कर सकते हो तो मैं इतने सालों से जो देख रहा हूँ क्या हो ये लोग कहते हैं ये वाला तंत्र कोई इलाज भीड़ तंत्र होता है भीड़ तो मैं इकट्ठी भी कर सकता हूँ पॉपुलैरिटी होगी तो भीड़ इकट्ठी हो सकती है उनको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ तो इलेक्शन लड़ना होगा जब तो भी जीतेंगे कोई प्लान नहीं है मेरा पिछले इलेक्शन में मुझे ऑफर किया गया मैंने मना किया तो मेरा कोई प्लान नहीं सो नो आई हैव नो प्लान सो व्हाट आई वुड say is that if you have any question anything feel free to ask कुछ भी पूछ सकते हैं सलमान खान की शादी कब होगी देखिए मैं ये दिस इज द होप पूछा मैंने जवाब तो अगर जिस चीज का मुझे जवाब नहीं भी आता तो जवाब मिल जाता है दिस इज पॉजिटिव एनर्जी I'd like to ask a question. yeah please So what keeps Sanjeev Kapoor going? Like it has been a 19 years of journey. 19 years no You just much longer than much that. longer than that. So what keeps you going? Like what's the inspiration behind the hard work you do? What keeps me going? I actually don't even know. I don't make any special efforts to do anything that I do. So I do things that I like to do. I don't do anything that I don't want to do. I think that's what keeps me going. मेरा जो दिल चाहता है मैं सिर्फ वो करता हूँ और कोई ऐसी चीज़ नहीं करता जो मेरा दिल नहीं चाहता. So if you do what you want to do, you can continue to do it. Thank you. Yes. Sir, when people get famous, तो आसपास के लोगों को criticize करना शायद बंद कर देते हैं या डर जाते हैं. So who is your biggest critic or someone you listen to? जिस तरह थोड़ा कुछ नया try करते हैं तो you want them. इनको बाहर निकाल के ऐसा सवाल कौन पूछ रहा है? So what happens is that what you're saying is right, but I think घर पे आप famous नहीं हो सकते. So I think anyone, not just me, but आप अपने अपनों के लिए फेमस नहीं होते, आप दूसरों के लिए फेमस होते. So वो अपने इसीलिए होते हैं कि वो आपसे सच कहते हैं और आपको कोई सच बुरा नहीं लगता. So in my case also मेरा जो परिवार है वो काफी बड़ा है और whether it's my wife, my mom, my daughter or my colleagues, friends. They absolutely keep me on my toes and tell me what I should do and what I should not do. सुनता कम हूँ वैसे. वो तो मेरे मतलब कह सकते हैं
करना तो मेरी मर्जी है। सच बोलो सुखी रहो, एक बार बोलना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता कब क्या बोला था। हाँ जी, yes, hi. Sunil from Restaurant India. Sir, just wanted to know what is unique with this restaurant. When I go to other yellow chili outlets, will there be same kind of experiments, the recipes, or what is unique with this? What are the expansions? Okay, so if you are looking at the differences between yellow chili, no, there are not too many marked differences that we want to create. Over a period of time, we evolve the brand. Okay, so there are some design elements that may change, there are few dishes that may change. So each area, each region, what we do is, while our core menu remains the same, there are few regional elements that we would have for that place, because the restaurant business is very neighborhood driven, especially the yellow chili. We believe that restaurant yellow chili brand is a neighborhood brand. So we have to take care of that neighborhood first. Our loyalties are most to that neighborhood. So in that, there is we don't make an effort to be different than other yellow chili. That's not the, because the name is same. So philosophy will be same, but there may be minor changes, keeping in view the where the brand is at that time. Because जो 20 साल पहले बोला था और फिर कुछ फर्क वैसे भी हो गया होगा. There are certain things which are adapted to that place so much that we would not change them. So, but अगर आप लल्ला मुसा दाल लुधियाना में खाएंगे तो 20 साल वाले आज यहाँ खाएंगे, we see. But there may be few dishes which are here. There are few, let's say in Dubai when we open, or in Qatar when we open, there may be slight 5-10 dishes which are different also. In India ये जो हमारे करीब 70 से आधे कुछ इंडिया में. So we, as of today, we are working on total about 135 restaurants, including the ones that are open. So that is a very big target to first. तो हमने जरा और signing थोड़ा सा slow किया. Oh yeah, we would definitely, we are looking at about 150 outlets. Okay, hi sir, Vasni here from Ivan Center. Like I what you said in the start कि खुश रह के खाना बनाना चाहिए and everything. Every person in this world, on this earth, has some motivation or inspiration, and that can be some other person, that can be the person himself. But आपको किसके हाथों का टेस्ट सबसे ज़्यादा भाता है जिससे आप हर बार इंस्पायर होते हैं? So naturally there is one thing, things that you have grown up with, right? There is a very large element of nostalgia in that, and that romance is like no other, right? So that my mom is sitting here. So when she would cook something, and she knows that, and that's something that I've been I have grown up with. So uska charm, uska romance. So that's yeah. But other than that, I think inspiration, I don't think it's person specific for me. It does not. It can come from anywhere. I think God has been kind to me that I can take things from anywhere. It is not a person. It could be I'm sitting on a flight and it's a sunset view that I see, and the color of that sky, I say, wow. ये अगर जो मैं अपनी सॉस हम बना रहे हैं, तो ये अगर ये वाला कलर लो तो बहुत बढ़िया कलर है. It will go very well, right? And then you say that, अच्छा, ये ब्लू के साथ में ऑरेंज हम खाने में नहीं करते. आपने पहले ऑरेंज सोया, but then there is a second. अच्छा मैं इसमें नहीं कर सकता. Maybe in the drink I can do that. So the inspiration to me is not person specific. और कहीं ऐसा नहीं कि ये वाले बहुत कोई वो है, कोई एक खोमचे वाला आप देख लेते हैं, कमाल से क्या बहुत ही. So we can say like inspiration doesn't come, so you have to get it.
Yeah, but you start to attract. हाँ जी. Hi sir, I'm Nisha. You're a food blogger. So which is that one dish from your menu in Yellow Chili you think you put in your heart and soul? Just that one dish. वो कौन सी dish? No, that's unfair thing because that's I don't do that. मतलब कुछ तो नहीं ऐसा नहीं है कि मेरी कौन सी बीवी मेरी सबसे प्रिय है. सारी बीवियां प्रिय हैं. सर इन रिकॉर्ड तो एक ही है. Oh really? अच्छा. No, the point is that when you do something, I don't do anything that I don't want to do. So if I didn't believe in something, I would not do it. I would not do it. That's not something. और ऐसा नहीं होता कि आप सुनो आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है. मुझे पानी पूरी भी अच्छी लगती है बहुत. पर सुबह सुबह अगर मुझे पानी पूरी सुबह उठने को दे दी मैं नहीं. जैसे हर चीज का रीजन लॉजिक होता है. आप एक चीज में सारी चीजें नहीं ढूंढ सकते. सारे स्वाद एक चीज के अंदर नहीं डाल सकते. हर इमोशन के लिए एक अलग स्वाद होता है. तो सर सोचे हम आपके घर खाने आ रहे हाँ जी. हैं तो आप वो एक डिश कौन सोचो ही अभी तो चलिए आ जाए. एक घर ही आए हैं. हाँ. आज ही आ चुके हैं ना. आज ही आए घर ही आए. हाँ जी. So which is that one मीठा आप मुझे खिलाएं. Okay, so I always say this. मैं सबको कि घर पे किसी को भी बुलाओ उनकी पसंद जानो. Because घर पे किसको बुलाते हो? ऐसे सड़क पे याद है हाँ भाई चलो मैं जा रहा हूँ. आप जानते हो राइट. लेकिन हम क्या करते हैं हम वो बनाते हैं जो हमें परफेक्ट आता है. 25 साल से उनके घर के छोले जितनी बार जाओ वो छोले वही दही भल्ले सारे वही मिलेंगे. क्यों वो रिस्क नहीं लेते. उनको पता है कि बस एक वाली चीजें हमें आती है ये बनाओ बस ठीक है टेंशन खत्म. बट बेटर वुड बी कि आप जिसको बुला रहे हैं उनसे पूछो. तो मैं क्या करता हूँ तो आप सोचो कि आप टेलर के पास गए और उसने अपने पसंद से मुझे बना के दे दिया. It has to fit, right? So it's best to ask. So what I do is मैं पहले दो तीन चीजें घर पे मेरे कोई जब बुलाता हूँ तो मैं 2-3 चीजें जरूर पहले करता हूँ. मैं कहता हूँ देखिए एक तो ये कि मेरी डाइनिंग टेबल पे 8 लोग बैठ सकते हैं. अगर आपको नहीं आना तो पहले बैठो. खाली नहीं होगी. दूसरा मैं कह देता हूँ कि अगर आपकी कोई एलर्जी कोई आप चीज़ नहीं खाते वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन लेकिन मशरूम नहीं खाते ये नहीं खाते वो नहीं खाते आज ये आज एकादशी है वो जो कुछ भी है पहले बता दो. उसके साथ में कितना मतलब तब आपने उनसे पूछ दिया कि कोई प्रेफरेंस है वो भी बता. So now you will get so once I understand कि आपको ये अच्छा लगता है right it becomes so easy to please. So do that. क्या अच्छा लगता है कोई भी मीठा बता. गाजर right. So now that I understand कि आपको गाजर का हलवा पसंद है so I understand your profile कि ये आपको पसंद है. बट अगर मैंने आपको गाजर का हलवा खिला दिया तो वो ये लगेगा कि संजीव कपूर का गाजर क्या गाजर right. So now I have understood this और मैंने आपसे पूछ भी लिया तो आप घर पे आए हमारे हमने आपको चॉकलेट राइट छोटी छोटी चॉकलेट आपने कहा कि अच्छा पूछा था बात तो करी थी गाजर के हलवे की क्या रहे चॉकलेट. तो आपने जैसे ही वो चॉकलेट खाई उसके बीच में फूट के गाजर का हलवा राइट. वेरी सिंपल थिंग टू डू बट समथिंग व्हिच यू लाइक बट डन. अब उसकी कहानियां भी बननी शुरू हो जाएंगी. अच्छा ये क्या है एंड इट आल्सो गिव यू कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस. ये तो मैं कर सकती हूँ. But what I always say is that it's not what food I can do. I'm an enabler. I enable people to cook, and I want to make sure that they cook very good. So बन जाएगी आराम से बन जाएगा. सीख सकते हैं एक नई रेसिपी. इनका शेफ आपने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को भी फीड किया हुआ है in the past, down to all the 30-year-old who are your fans. Thank you. Thank you.
Yes. Yeah, so naturally what we do is that normally हमारी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, so there are a few things that I believe that there is a collective belief that we have, and हर रोज एक कोई नई चीज़ दुनिया में हो रही है, पर हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि अच्छा है, but let's evaluate it. Let's look at it. While we want to do it, would we want to do it in near future? No. Okay. But things like this, would we have discussed talk? Of course. So that's we are aware. We know what is happening. We understand. और बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं. Not everything we can adapt when you're doing with whims and fancies पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आज मेरा ये बिलीव है, आज मुझे मैं ये करता हूँ, but there when you are a single person, then you can do it. But when it's a collective business, then the responsibilities are different. But yeah, it worth exploring. Thank you. What is one advice that you would give, one mantra that you would say for a balanced diet between healthy and unhealthy? Okay. So first, I think since you are saying one thing. More advice. No, I think one of the key things, because otherwise it becomes too confusing और इसकी knowledge सब में होती नहीं, और knowledge भी अगर ठीक होती भी है तो इतने सारे brands, इतने so much of money that is riding, what they will talk about is very difficult to say. So key is in having things in moderation. Moderation is good. Don't overdo anything. किसी भी चीज़ की अति नहीं करें. Oxygen also in large doses is not good. Okay? So समता बना के रखें जीवन में, अपने खुशी में ज़्यादा खुश ना हो, अपने दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, खाने में भी वही. So don't overdo anything. Is there any particular way the food is cooked so that the nutrition is not lost? Sure. So there are principles of cooking. Nutrition not getting lost. हर चीज़ के अलग चीज़ें होती हैं. So nutrients समझने पड़ते हैं. कुछ nutrients होते हैं जो water soluble होते हैं, कुछ होते हैं heat sensitive होते हैं, कुछ किसी चीज़ के साथ में combine करते हैं. So it's a science that you have to understand. So it's not something कि आप ऐसे एकदम कर दें. But there are few things that most of us know, जो हमें पता ही है वही फॉलो करना शुरू कर दें. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, जो पता है. सारी चीज़ें पता होती हैं हमें कि कोई तली हुई जो चीज़ें हैं, मैदे वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा चीनी वाली हैं, ज़्यादा तेल, पता है, सबको पता है. वो इसीलिए शुरुआत करते हैं. सो इट्स नॉट दैट कि मतलब आज हम बोलेंगे तो बर्गर तो अनहेल्दी था लेकिन समोसे हेल्दी हैं, वो तो नहीं होता. जो इंडियन है जी वो वैसा नहीं होता. जो चीज़ें जो हमें पता है, just go with that. Otherwise the subject is too vast. And lastly, what is your favorite dish that if you wake up or you sleep 365 days, if I offer you, it always happens? Nothing. There is nothing. You don't pray for anything, No, anybody? so, and the answer is everything. I eat everything. There is nothing that I don't eat. But I'm not a person, so I'll tell you one story. कुछ साल पहले की बात है, फ्लाइट में साथ में थे और शख्स नाम चंद्राज जैन, उनकी कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं बैंगलोर. बैठे हुए बातें चल रही, खाने की बात हुई, क्योंकि मेरे साथ में कोई भी खाने की बात होती. तो चलिए उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल मेरा जीवन है, मैं तो बहुत मैं तो कुछ नहीं, मैं तो चावल और सांभर.
मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या करते हैं, बट देखिए ये तो आप मानेंगे ना कि मेरे जैसा सिंपल आदमी कोई नहीं है। मैंने कहा आपके जैसा फंसी आदमी कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा बहुत सिंपल हूँ। मैं कहा नहीं, आप तो आप किसी घर पहुँच गए जिसके यहाँ चावल और सांभर नहीं है, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। मैं कहा सिंपल होना है तो अडैप्ट करना सीखे। कोई इतने प्यार से कोई खिला रहा है तो हम फ्लाइट में थे, मैंने बुलाया, मैं कहा बस चावल और सांभर ऐसे नहीं है। मैं कहा देखो बस देखो, मैं नहीं खाऊंगा। मैं कहा एग्जैक्टली, आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। यू एवरी टाइम व्हाट you want to have. So there is nobody who's more fussy than you. You're a very fussy person. He said that's a perspective I never thought. So it's how you look at it. So I like it. Jala almost 10 years with that and completely dedicated. इस हद तक कि हमारे सारे बच्चों को वो पर्सनली जानते हैं, सपोर्ट पेरेंट्स को देते हैं. He's made recipes which are gluten free for some of our children. And then, you know, when we go along with him for a marathon, he treats us as his personal friends. Everybody is around him. बच्चे उनको इस हद तक चाहते हैं कि हमारे हर साल जो पेरेंट्स आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं. नहीं वो एक्चुअली ये गलत है. नहीं सही में सच है. नहीं वो मेरी वाइफ की वजह से आते हैं, वालिदा की वजह से आते हैं. थैंक यू फॉर कमिंग. हाँ ये एक्सपेक्टेशन है, तो सोचा है. सो हमारा कोई ऐसा कोई वो नहीं है. वी आर नॉट परफॉर्मिंग फॉर एनीवन, वी आर ओनली डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स. एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम चाहते हैं कि इंडिया और देश के कोने कोने में जा सके. इंडियन खाना जो है इंडिया के बाहर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. नई पीढ़ी जो है वो थोड़ा सा अपने खाने से कई बार कतराती है. तो आई वुड से दैट इट्स नॉट जस्ट अ बिज़नेस बट आई फील दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव कि हमें अपना जो खाना है वो अपने यहाँ पे भी उतना ही पॉपुलराइज करना है. सो here we have a new yellow chili that is opened today in Mumbai in Dadar. और दादर को मुंबई का गढ़ माना जा सकता है हर तरीके से. तो ऐसे में येलो चिली इज़ दी बेस्ट ब्रांड दैट आई वुड से दैट वी हैव टू ऑफर. और इसमें अलग क्या है, अलग हर चीज़ को अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छा करने की ज़रूरत होती है. तो इसमें जो चीज़ें हैं वो दिल से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, बट अलग करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक कोशिश नहीं करते. मुंबई में हर चीज़ लाइक एक चीज़ एक जगह पे फेमस होती है कि अगर ये खाना है तो हमें यहाँ जाना चाहिए, अगर वो पसंद है तो हमें वहाँ जाना चाहिए. येलो चिली में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप हमारे मुंबई को बताना चाहेंगे कि अगर वो चीज़ देखनी हो तो येलो चिली में आना है?
सो अगर एक फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में काम करने वाले कोलीग्स के साथ में अच्छा टाइम व्यतीत करना है और अगर घर से आप निकले हैं और अच्छा एक माहौल मिले जहाँ पर खाना बहुत बढ़िया मिलेगा जिसकी गारंटी है, तो वो येलो चिली है। इंडियन खाने में नेचुरली हमारा जो स्क्यू है नॉर्थ इंडियन खाने की तरफ होता है, बट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो वी गिव डिशेस। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ओवर द ईयर्स सिग्नेचर डिशेस जिनको कहना चाहिए वो बन चुकी हैं। हमारे ब्लैक दाल जैसे लोग हर रेस्टोरेंट में होती है, बट वी कैन से विदाउट अ डाउट जो हमारी लल्ला मुसा दाल है वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है कि एक बार जो खा लेता है उसकी लत लग जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि लत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लल्ला मुसा दाल की लत लग सकती है। और हमारे एक डिश जो मैंने टीवी पे पहली बार बनाई थी अपने पहले एपिसोड में शाम सवेरा, वो यहाँ पर मिलती है और बनानी मुश्किल भी होती है। काफ़ी लोग ट्राई करते हैं बट उतनी आसानी से बन नहीं पाती है। दैट इज़ यूनिक, दैट यू नॉट गेट एनीवेयर। सिंपल ड्रिंक हमारी अमरूद के रस के साथ में थोड़ी स्पाइसी पेरू प्याला होती है। नॉर्मल गुलाब जामुन बहुत जगह लोग खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गुलाब जामुन नहीं होते, हमारे यहाँ गुलाब गुलकंद होता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि गुलाब में अगर ना गुलाब ना जामुन तो क्या हुआ गुलाब जामुन, तो इसलिए हमने उसमें गुलाब भर के डाला है उसमें। तो गुलकंद के साथ में हम गुलाब जामुन बनाते हैं, गुलाब गुलकंद बनाते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया, जितने हमारे और आउटलेट्स हैं इंडिया के बाहर तो वो चलते हैं। तो वेजिटेरियन सिलेक्शन बहुत अच्छी है। नेचुरली वाइड वैरायटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिशेस ऑल्सो। अच्छा एहसास होता है खाने के बाद में, अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। तो देखा जाए तो ये सारा एक पूरा कलेक्टिव है, नॉन वेज वेज सब चीज़ की डिशेज यहाँ पे मिलेगी। कोई ना कोई पर्टिकुलर डिश होती है जो इंसान को, जैसे आप भी कहते हैं कि हर डिश का अपना अलग टेस्ट होता है, आप कुछ प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी एक चीज़ आपसे अगर पूछी जाए कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए, एक डिश में बहुत पसंद वाली है तो मतलब इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें, एक डिश से क्या मतलब हुआ, ये क्या बात हुई कि तो ऐसे तो एक चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। घर का खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो कम मिलता है, तो इसलिए वो मेरी पसंद घर का खाना ज़्यादा है। बट रेस्टोरेंट के हिसाब से देखा जाए, जब भी मैं येलो चिली में आता हूँ तो क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है तो मेन्यू के बाहर की चीज़ें खाता हूँ मैं। तो मैं शेफ़ को बुलाऊँगा, मैं कहूँगा अच्छा तुम्हारे पास ये है ना, ये है, इसको ये करके ऐसे करके ले आओ। तो मैं उस समय क्या मूड है मैं उसके हिसाब से करता हूँ। जैसे अब आपने बात की तो मैं सोच रहा हूँ कि इस समय सर्दियों का मौसम है, सरसों का साग बड़ा अच्छा मिलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं चाहता हूँ नॉन वेजिटेरियन में सरसों के साग के साथ में चिकन बनेगा तो कैसा बनेगा। पालक, सरसों का साग और थोड़ा सा तंदूर में पका हुआ चिकन, उनसे डिश बनाई जाए। अब तो पकवानी पड़ेगी, अब तो खानी पड़ेगी, टेस्ट करनी पड़ेगी, अच्छा स्वाद आएगा, बहुत अच्छा आएगा। सरसों साग मुर्ग, नाइस डिश। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको इस नए वेंचर के लिए। थैंक यू। दूसरा सर सवाल ऐसा है, वाकया हो तो बताएंगे तो ज़रूर। तो पर्सनालिटीज़, तरह तरह की पर्सनालिटीज़ को खाना खिलाने का मौका मिलता है, और जाहिर सी बात है कि आप मुंबई में रहते हैं तो बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो आप सबसे मुलाकात आपकी आराम से हो जाती है। तो ऐसे में मतलब एक किस्सा नहीं, हज़ारों किस्से, बहुत किस्से मेरे पास होंगे। लेकिन एक जो चीज़ मेरे जहन में सबसे ज़्यादा, वो रेस्टोरेंट में नहीं, एक्चुअली शूट के समय मेरे साथ हुई। हम लोग मैं और बच्चन साहब, हम एक राइस ब्रांड हम दोनों इंडोर्स करते हैं, तो उसकी ऐड की हम शूटिंग साथ में करने वाले थे। तो बच्चन साहब के साथ में अब काम करने का मौका मिल रहा, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था।
और मैं सोच रहा था कि अच्छा मैं जानता हूँ उनको, मिला हूँ, लेकिन अब ऐसे मिलूँगा तो मैं उनसे क्या कहूँगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये लिटमस टेस्ट कि आप खाना नहीं बना रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं उनके साथ में, तो बहुत बड़ा टेस्ट हो गया आपका। तो आप सोच रहे हैं कि कैसे मिलेंगे, तो क्या कहेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। तो ऐसा मैं सोच रहा था। तो जैसे शूट हुई तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा, तो मैं स्टिल शूट कर रहा था। जब बच्चन साहब आए, समझो बच्चन साहब आ गए, मुझे भी वहाँ पे सेट पे मैं भी फटाफट पहुँच गया। वो सामने स्टूल पे बैठे हुए, तो मैं चल के आया, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उम्र में भी बड़े हैं। तो मैंने जाके जैसे ही मैं उनके पाँव छूने लगा, उन्होंने मुझे रोक लिया, क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल सकता, उन्होंने मुझे कहा, व्हाट एन ऑनर टू वर्क विद यू। मैं एक रात पूरी ये सोच के कि मैं साथ में काम करने पे मैं उनको क्या बोलूँगा, उन्होंने सारा का सारा मेरा जो प्लान है वो एकदम बट दैट शूट वेंट ऑफ वेरी वेल। 2 दिन का शूट होने वाला था, और करीब आधे दिन बाद उन्होंने कहा कि ये इतना समय क्यों लगा रहे हैं। मैं कहा पता नहीं सर, ये शायद ऐसे ही होता होगा। कहते नहीं, अगर आप साथ देंगे तो इसको हम जल्दी कर सकते हैं। मैं कहा सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो हमने 2 दिन का शूट 1 दिन के अंदर कंप्लीट किया। तो आई एम वेरी प्राउड कि आई कुड वर्क विद हिम, एंड उन्होंने चैलेंज जो मुझे दिया, विच वॉज नॉट कुकिंग, आई कुड डू दैट। सो आई एम वेरी प्राउड टू डू दैट। बस खाना बनाना तो मेरी खासियत है, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। I think this is something in the category. I've been saying this for many years now. In many forums, I have said this, that the recognition of this kind has to be done. और तो शुरू में जब हमारी ये बातें शुरू हुई, तो मुझे बताया जाता था कि ये कैटेगरी नहीं है। तो मैं कहता था कैटेगरी कौन सी है? आर्ट की कैटेगरी है, साइंस की आपकी कैटेगरी है। कुकिंग जो है वो आर्ट भी है, साइंस भी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कैटेगरी नहीं है। बट आई एम ग्लैड दैट नाउ दिस इज़ रिकग्नाइज्ड, एंड आई होप दैट मैनी मोर शेफ्स विल गेट दिस ऑनर। एंड मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सिर्फ शेफ्स नहीं, देयर आर मैनी डिज़र्विंग people who are cooking at home, who are changing lives through their home cooking. I think they also deserve this. They need to be considered, they need to be honored, they need to be recognized. सर, इसी का कैरियर सवाल है। स्टार्टिंग करते वक्त आपको लगा था मैं पद्मश्री तक पहुंच जाऊंगा? देखिए, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप ये सोच के नहीं करते हैं कि आप कई बार क्या होता है कि आपको चोटियाँ पता होती हैं। आपने एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आपको पता है कि चोटी कहाँ है, लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें रास्ता ही आप बना रहे हैं, तो चोटी और गोल का लक्ष्य का सवाल ही नहीं उठता। तो इस केस में लक्ष्य क्या है मुझे ये नहीं पता। मैं अपनी सिंसियर एफर्ट करता रहूँगा, और उस सिंसियर एफर्ट का एंड गोल कभी बेस्ट शेफ़ ऑफ इंडिया होता है, कभी नेशनल अवार्ड होता है, कभी पद्मश्री होता है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। हर रोज़ मैं सोचता हूँ कि मुझे अपना काम करना है, और उसी पैशन के साथ, उसी जुनून के साथ मैं करता हूँ। श्योर। सो जो रेस्टोरेंट बिज़नेस है हमारा, उसमें हम जो हमारी अभी की नंबर्स हैं वो करीब सिस्टम वाइड हमारी जो सेल होती है करीब 200 करोड़ के करीब की सेल इसकी होती है हमारी। और दिस इज़ समथिंग विच वी बिलीव वी कैन टेक इट टू much higher level, and that's what we want to do. जहाँ तक येलो चिली का सवाल है, ये हमारा दो पीपल perceive it as fine dining, but we position it as casual dining brand with great food at value offering. It's a neighborhood
Indian food brand, which we want to populate across the world. In terms of investments, we look at a single unit in India. We cap our investment little over 1 crore, and it's a very good margin business if run well. Restaurant business is a fantastic business, but it has to be run really, really well every day. So this location, because the neighborhood is densely populated, people who are based here, they have good income. At the same time, we didn't want to position it too high, but at the same time, we have not built a QSR model for us. So a location like this, if it was on ground floor, QSR model would have worked. One, we are not on ground floor. Two, we don't have an offering as of now, which is a QSR. We're building one. So once we have that, we'll start to consider that also. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you. Hi, I'm Amrita Raichand and I'm really happy to be here. Chef Sanjeev Kapoor is the reason I am a chef. So anything he does, I feel closely about it. And it's great that finally Yellow Chili is open in Dadar, which is close to where I live. I live in Colaba, by the way. So there's something that's come to South Bombay, which I'm very happy about. I wish the whole venture all the very best. The food is amazing. After all, if Chef Sanjeev Kapoor is attached with it. मुझे तो सभी पसंद है, इसलिए मैं बायस नहीं होंगी. हर रेस्टोरेंट, हर येलो चिली में वो थोड़ा सा अपना अलग अंदाज डालते हैं और अलग अलग रेसिपीज डालते हैं. आज मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो आज मैं जब सब कुछ ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि क्या ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. आई थिंक सबसे स्पेशल बात येलो चिली की ये है कि शेफ़ संजीव कपूर का नाम उनके साथ जुड़ा है. एंड ये बिना बायस के मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ और मैंने हमेशा देखा कि वो किसी भी चीज़ के साथ जब जुड़ जाते हैं तो कुछ कमाल ही करके दिखाते हैं. यू नो, ही हैज़ द मिडास टच. सो ये भी बहुत ही अच्छा होने वाला है. एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए, खाना ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक दीजिए. What are the questions you're asking? तो वो बता दो. I don't know. येलो चिली. जल्दी जी क्या कहना चाहेंगे येलो चिली के बारे में? संजीव कपूर जी का सेकंड ईयर आउटलेट लॉन्च हुआ है यहाँ पे दादर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं संजीव जी को मुबारकबाद देना चाहूँगी और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू संजीव जी, जिन्होंने ये सेकंड आउटलेट खोला है और हमें अच्छा खाना सर्व करने वाले हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेरी एक्साइटेड. संजीव कपूर जी के बारे में बात करें तो आप कितना फॉलो करते हैं संजीव जी के उनके हेल्थ टिप्स को लेके, या फिर कभी ऐसा कुछ शो देखा हो तो आपने कभी फॉलो किया अपनी लाइफ में? काफ़ी सारे शोज़ उनके मैंने देखे हुए हैं और वो इतने इंटरनेशनली रिनाउंड एक शेफ़ है. आई गेस ही इज़ द फर्स्ट वन टू सर्व एंड यू नो कुक इन द वाइट हाउस एज वेल. और उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे भी खाना बनाया है. तो ही हैज़ मेड अस सो प्राउड. तो मैं उनके टिप्स हमेशा फॉलो करती रहती हूँ और उनका खाना खजाना और फूड चैनल पे जो भी शोज़ आते हैं, मैं और मेरी मॉम स्पेशली वो हमेशा देखते हैं और कुछ नया नया ट्राई करते रहते हैं. ऐसा कोई डिश है आप जो संजीव जी से जानते
मुझे उनसे कुछ पास्ता की अच्छी कोई रेसिपी, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इटालियन फूड, सो मैं कुछ अल्फ्रेडो सॉस कैसे बनाते हैं और पास्ता कैसे बनता है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट डिश. सो इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद कुछ सम डिफरेंट रेसिपीज, दैट विल बी रियली एक्साइटिंग. हम आमतौर पे जब खाने के बारे में बात करते हैं, जी. जैसे आप टाउन साइड का बहुत ही कम होता है आना, हाँ. तो ऐसी कौन सी जगह आपकी फेवरेट जगह जहाँ पे आप नॉर्मली जाना पसंद करती हैं खाने के लिए? खाने के लिए तो जहाँ पर अच्छा खाना होता है मैं हर जगह पहुँच जाती हूँ. आई एम ए कम्प्लीट फूडी, और बीइंग अ पंजाबी एक हमारे को खाने का एक अलग ही स्वाद चाहिए होता है. तो संजीव जी के खाने में वो टेस्ट मिलता है. उनका जैसे खाना खजाना एक दुबई में भी आउटलेट था, तो मैं वहाँ पे भी गई थी. तो दुबई में हमेशा मैं जब भी दुबई ट्रैवल करती हूँ तो आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड कि मैं उनके रेस्टोरेंट में जाऊँ और कुछ नया एक्सप्लोर करूँ वहाँ पे. थैंक यू. श्रद्धा जी क्या कहना चाहेंगे? आज येलो चिली का सेकंड आउटलेट लॉन्च हुआ है संजीव जी का, क्या कहना चाहिए संजीव जी के बारे में? क्या कहना चाहिए? इट्स वंडरफुल. लाइक मैं जितना भी कहूँ शेफ़ संजीव के लिए बहुत बहुत कम होगा, बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक शेफ़. एंड मैं बहुत फूडी हूँ, जो कि मतलब फूडी हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत डाइट कंट्रोल करके करती हूँ. एंड शेफ़ संजीव इज़ लाइक रियली वंडरफुल इन दैट. मतलब वो हेल्दी फूड बहुत अच्छे से रेसिपीज़ बताते हैं जिससे आप हेल्दी रहें. लाइक बहुत स्मॉल चीज़ें जैसे शुगर एंड एवरीथिंग, कैसे आप उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं. सो ही इज़ वेरी गुड विद दैट इन द oil and everything that he uses, so that is fantastic. So it's very healthy joint, so I'm looking forward to be here because I've been to his yellow chilies in Pune and the food was really nice. And I hope, and I'm really sure that this is going to be really rocking. सीखना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बहुत बैड कुक हूँ, सो अगर उन्हें मुझे कुछ सिखाना होगा तो मतलब ABCD से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता किसमें क्या चीज़ कितनी डालनी चाहिए. सो आई थिंक एनीथिंग हेल्दी जो मैं अपनी डेली लाइफ में खा सकूँ और वो मुझे बहुत हेल्दी तरीके से और ईजी वे में बनाना सिखा दें, तो आई विल बी हैप्पी टू लर्न दैट. I love to try. I said I'm foodie and I love to try different cuisines, and it's nothing favorite, but yes, anything which is healthy, not only in Indian but anything else also I enjoy eating. So though I limit myself, and there is only one cheat day that I get, and that is Sunday. So that day I cheat like anything. So it's not Indian. I prefer Indian, Chinese, continental, Italian, anything that I get to eat which is cooked well and it's healthy, I eat it. Thank you.